Hi guys, my today's topic for discussion is stoichiometry. And questions based on it. First will be this, and another topic is limiting reagent. First of all, we will talk about stoichiometry in a chemical equation. Actually, stoichiometry is a Greek word. We can say that stoichiometry is a Greek word which is made up of two words, stoichion and metron. Here, stoichion means elements and metrons means measure. Actually, stoichiometry in a chemical reaction gives quantitative relationship between the reactants and products in a balanced chemical equation. We can say that stoichiometry gives a quantitative relationship between the reactants and products in a balanced chemical equation. And as we know that balanced chemical equation is the equation which has same number of atoms of different kinds on both reactant side and product side. If number of atoms of different kinds in reactant side and product side is equal, it means this is a balanced chemical equation. तो सेकेंड जो टॉपिक है हमारा सेकेंड वन इज लिमिटिंग रिएजेंट. एक्चुअली दिस इज ए टॉपिक ऑफ 11th क्लास. 11th केमिस्ट्री के अंदर है ये टॉपिक. तो लिमिटिंग reagent. Limiting reagent is a reagent which is present in limited amount in a chemical equation, a chemical reaction, and it limits the formation of product. Means it will consume first, then the reaction will stop at that stage. चलिए हम इस स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग MnO2. MnO2 मीन्स मैग्नीज ऑक्साइड विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. इक्वेशन हमें दी हुई है 4HCl plus MnO2 gives rise to 2H2O plus MnCl2 plus Cl2. तो इक्वेशन एक बार हम इधर लिख लेते हैं इसको. 4HCl plus MnO2 gives rise to 2H2O plus MnCl2 plus Cl2. How many atoms or grams of HCl reacts with 5 gram of MnO2? तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि 5 ग्राम MnO2 जो है वो कितने HCl के साथ रिएक्ट करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसका स्टोइकोमेट्री देखते हैं. यहाँ हम कह सकते हैं 4 moles of HCl reacts with, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है. It means 4 mole HCl reacts with 1 mole MnO2 to give 1 mole MnCl2 and 1 mole of Cl2. This is the stoichiometric coefficient of each product. अगर हम इसके
कैलकुलेट करें तो HCl का हाइड्रोजन 1 प्लस HCl 35.5 एंड ये कितने मोल्स है 4। MnO2 की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीज का मास होता है एटॉमिक मास 55 इंटू 16 इंटू 2 सॉरी प्लस दिस वन विल बी 36.5 into 4 146 gram and this will be 55 plus 32 87। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि हमारा 146 ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा है 87 ग्राम ऑफ MnO2 और वी कैन से 87 ग्राम MnO2 reacts with 146 gram HCl. Here we can apply unitary method to calculate the final answer. So 1 gram reacts with 146 by 87 gram and we have to find out for 5 gram. 5 gram reacts with into 5 gram. We can solve this 146 into 5 by 87 and यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर। चलिए बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है 30 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर रिएक्टेड, यानी हमने क्या लिया मैग्नीशियम लिया प्लस O2 लिया और इनकी रिएक्शन कराए 30 ग्राम ऑफ दिस एंड 30 ग्राम ऑफ दिस। हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा MgO। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ रेजिडुअल मिक्सचर। रेजिडुअल मिक्सचर मीन्स जो यहाँ पर बच गया और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो हमें फाइंड आउट करना है। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट वन इज एक्सेस रिएजेंट and second one is our product. Excess reagent means जो रिएक्शन एंड होने के बाद जो बच जाता है एक्सेस में उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो इसको एक बार पहले बैलेंस इक्वेशन देख लेते हैं उसकी। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है Mg plus O2 gives rise to 2MgO. We can put 2Mg. This is our balanced chemical equation. So first of all we have to find out their atomic mass. So Mg means 24 into 2 or oxygen 16 into 2 and our product is 2 into 24 plus 16. So 48 gram. This one is 32 gram and our product is 80 gram. ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि जब 2 मोलिक्यूल एटम्स ऑफ Mg ऑक्सीजन 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें 2 मोलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर हमें बताना क्या है, एक तो हमें एक्सेस रिएजेंट मीन्स जो हमारे पास रेजिडुअल मिक्सचर है उसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें अगर इसके स्टोइकियोमेट्री देखें तो वी कैन से दैट 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम reacts with 32 gram of oxygen. 1 gram कितने के साथ रिएक्ट करेगा, सेम वी कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड। 1 react with 32 by 48 nearly given 30 gram of Mg. We can multiply 30 here. So here is 20 gram of magnesium. Means
20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 30 ग्राम जो मैग्नीशियम है वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 20 ग्राम ऑक्सीजन। लेकिन हमें ऑक्सीजन दी कितनी हुई है, 30 ग्राम। इट मीन्स आवर रेजिडुअल मिक्सचर कंटेन्स रिमेन ऑक्सीजन अनरिएक्टेड हमारे पास थी कितनी, 30 ग्राम। रिएक्ट कितने कर लिया, 20 ग्राम। वी हैव 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड। इस 10 ग्राम ऑक्सीजन ने रिएक्शन नहीं की। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना बनेगा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कितना बनेगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट 48 ग्राम, सेम 48 ग्राम magnesium gives MgO how much, 80 gram. 1 gram gives same unitary method 48 और हमारे पास है कितना, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम reacts with 80 by 48 into 30. Answer will be 50 gram. So we can say that the residual mixture contains 50 gram of magnesium oxide. We can say that the residual mixture contains 50 gram of MgO, means magnesium oxide, and 10 gram of oxygen. This will be our final answer. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई करना। अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। इसका आंसर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।